Namaskar, I am Sangeeta M. Chauhan and welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today we are discussing Unit 1 of Class 11th Computer Systems and Organization. It is Part 2. Under the Part 1 we have already discussed some portion of this unit. We have discussed what is computer, what is input device, output device, memory or storage devices, memory units, difference between primary and secondary memory, difference between RAM and ROM, etc. These all we have discussed under the part 1, and this is part 2. In part 2 we are going to discuss what is hardware, what is software, types of software, operating systems and its major works, role of language processors or language translators, and utility softwares. So, what is computer hardware? All the physical components or physical devices of a computer are known as computer hardware. Physical component से यहाँ क्या मतलब है? Physical component of physical devices means any device which occupies some space or which can be seen, which can be touched is called computer hardware. Computer hardware may be placed internally or externally in computer. Like we can understand with the examples. Some examples of internal hardwares are motherboard, central processing unit, RAM. जैसे रैम हार्डवेयर है ऐसे ही हम रोम को भी हार्डवेयर बोलेंगे. रोम इज ऑल्सो हार्डवेयर. पावर सप्लाई, वीडियो कार्ड और साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, etc. These all are internal hardware. Why these devices or these components are called internal hardware? Because all these components are placed under the CPU cabinet. Now, some examples of external hardwares are monitor, keyboard, mouse, battery backup or UPS, we can say UPS, flash drive, printer, speakers, external hard drive and pen tablet. These all devices are attached with the computer externally. आप इसको CPU कैबिनेट के अंदर नहीं फिक्स करते बल्कि इसके बाहर फिक्स्ड होते हैं ये सारे के सारे डिवाइसेस. सो दीज डिवाइसेस आर नोन एज एक्सटर्नल हार्डवेयर. हम इसे और क्लियरली समझते हैं. इस डायग्राम को हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्ट 1 में. ये सारे के सारे डिवाइसेस, सारे के सारे कंपोनेंट्स CPU कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड है. पावर सप्लाई, माइक्रो प्रोसेसर, फैन, रैम, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD, DVD ड्राइव, these all are fixed under the CPU cabinet. So these all are called components and internal hardware. ये internally fixed है, इसको हम components बोलते हैं in general terms. और ये जो devices दिख रहे हैं जो कंप्यूटर के आसपास होते हैं यानी सराउंडिंग रहते हैं कंप्यूटर के, like monitor, keyboard, speakers or printer, scanner, these all are called peripherals. कंप्यूटर peripherals वो होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के सराउंडिंग आपको दिखाई देते हैं. Now software. What is software? Software is a program or group of programs to perform a particular or specific टास्क. किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए जब कोई प्रोग्राम तैयार किया जाता है, इट मे बी अ सिंगल प्रोग्राम और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क. एक ही टास्क को करने के लिए वो डिजाइन किया गया है तो उसे हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर. कई सारे सॉफ्टवेयर्स हम आम जीवन में देखते आते हैं. शायद आपको नहीं पता होगा कि इन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं. लाइक MS वर्ड आप लोग यूज करते हैं, दिस इज सॉफ्टवेयर. PDF एक्रोबेट रीडर आप यूज करते हैं PDF फाइल बनाने के लिए, रीड करने के लिए. एक्सेल,
पेंटिंग ड्राइंग टूल के लिए कोई ना कोई ऐप होता है, ट्विटर या कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ये जो पिक्चर्स हैं इनको देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? These all are ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। These are also सॉफ्टवेयर। इन्हें हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। और ये जो लेफ्ट साइड में हमने देख रहे हैं हम, दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Now, what is the difference between hardware and software? Hardware is the physical parts of computer that cause processing of data, whereas software is a set of instruction that tells a computer exactly what to do. हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को रन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है, प्रोग्राम की ज़रूरत होती है, उसके बिना हार्डवेयर रन नहीं करता। सिमिलरली सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर, हार्डवेयर पर ही रन करता है। एज हार्डवेयर आर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वी कैन सी एंड टच हार्डवेयर। वी कैन सी एंड ऑल्सो यूज द सॉफ्टवेयर बट कांट एक्चुअली टच दैम। लाइक MS वर्ड है, MS वर्ड को आप टच नहीं कर पा रहे हैं, एक्चुअली आप देख पा रहे हैं, उसे यूज कर पा रहे हैं, बट यू कैन नॉट टच दैट। इट इंक्लूड्स इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। अभी हमने बात की थी कि जितने भी डिवाइसेस फिजिकल स्पेस कंज्यूम करते हैं, दीज ऑल आर हार्डवेयर। तो ये सारे डिवाइसेस हार्डवेयर में आ जाएंगे। And software is mainly divided into system softwares and application software. हालांकि सॉफ्टवेयर्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हम अलग अलग बुक्स में अलग अलग एग्जांपल्स देखते हैं, लेकिन जो मेन 2 कैटेगरीज हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Now examples of hardwares are keyboard, mouse, monitor, printer, CPU, hard disk, RAM, ROM, etc. And examples of softwares are MS Word, MS Excel, PowerPoint, Photoshop, MySQL, DOS, Windows, etc. ये सारे सॉफ्टवेयर्स के एग्जाम्पल हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि मेनली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है मेनली, बट इसकी और भी कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर्स की, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्प करता है, और लैंग्वेज प्रोसेसर्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इन सबको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अगेन डिवाइडेड इनटू जनरल पर्पस एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिनका यूज जिनका एप्लीकेशन एरिया जनरल होता है, दैट मीन्स किसी पर्टिकुलर फील्ड में यूज नहीं होता, जनरल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, लाइक MS वर्ड। एंड कस्टमाइज्ड मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो हम अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं और किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही या किसी पर्टिकुलर एरिया में ही उनका यूज़ किया जा सकता है। दीज आर कॉल्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। लाइक बिलिंग के पर्पस से यदि कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है तो पर्टिकुलर वो उन्हीं प्रोडक्ट्स की और उसी शॉप की कंडीशंस के हिसाब से वो बिलिंग जनरेट करेगा, तो वो कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहलाता है। थर्ड कैटेगरी इज लाइब्रेरीज। आजकल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में इनबिल्ट लाइब्रेरीज आती हैं। लाइब्रेरी मीन्स जब भी हम लाइब्रेरी की बात करते हैं तो आप क्या इमेजिन करते हैं कि एक रूम है, उसमें कई सारी शेल्फ्स हैं और हर शेल्फ में कैटेगरी वाइज बुक्स रखी हुई हैं, और जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उस शेल्फ के पास जाते हैं, वहाँ से अपनी मनपसंद बुक लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। सिमिलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में भी
इसी तरीके से लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं और उस लाइब्रेरी में जो भी टूल्स अवेलेबल हैं उन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिस तरह से आपके सिलेबस में पाइथन लैंग्वेज है और पाइथन लैंग्वेजेस में भी लाइब्रेरी है, पाइथन लैंग्वेज में लाइब्रेरी अवेलेबल है, numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब एटसेट्रा। तो जब भी इससे रिलेटेड टास्क को करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, इसे भी हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a set of programs that control and manage the operations of computer hardware। यानी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं इसके अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट करेक्टली, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन किया जाता है। यदि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लेकिन डेफिनेशन हम कह सकते हैं, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस अ कंप्यूटिंग डिवाइस। The system software comprises the operating system, utility programs and device drivers। Operating system मैंने अभी आपको बताया कि it helps to operate system, that means computer। Utility programs में कुछ utilities होती हैं, मतलब आपके ज़रूरत के हिसाब से कुछ छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और device driver like if you want to use printer, if you want to use scanner, then you need to install device driver for scanner, device driver for printer in your computer। जब तक device driver नहीं होगा आप प्रिंटर को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आप स्कैनर को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। Now what is an operating system? An operating system act as an interface between user, hardware, software and other application on a computing device। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा है। इसकी हेल्प से ही यूज़र मीन्स हम और आप जो यूज़ कर रहे हैं वो यूज़र हो गए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स और अदर एप्लीकेशन जितनी भी हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर पा रही हैं, काम कर पा रही हैं, कोऑर्डिनेट कर पा रही हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ डिफरेंट फंक्शंस एंड टास्क इट कैरीज आउट ऑन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कई सारे तरह के काम ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑर्डर टू मेक दीज फंक्शंस easy to understand, they are grouped into following categories। किस किस तरह के काम करता है हम कैटेगरी वाइज इसको डिस्कस करते हैं। डिस्क मैनेजमेंट्स। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मीन्स हार्ड डिस्क आपकी। जब आप कंप्यूटर परचेज करते हैं और हार्ड डिस्क को लेते हैं तो हार्ड डिस्क के लिए एक सिंबल साइन होता है सी ड्राइव, यानी आपकी जो हार्ड डिस्क है वो एक सिंगल एरिया प्रोवाइड करती है। जब भी आप कुछ डेटा सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल योर हार्ड डिस्क कैपेसिटी इज 2 GB, तो 2 GB आपका एक डिस्क का साइज हो गया। मगर आप चाहते हैं कि इसको हम पार्टीशन कर दें, लाइक आपके एलमिरा में ड्रॉर्स होते हैं और ड्रॉर से आप क्या होता है कि आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि इस ड्रॉर में मैं ये सामान रखूंगा या रखूंगी और इस ड्रॉर में हमें ये रखना है। तो कैटेगरी वाइज रखने से आपको हेल्प मिलती है। तो सिमिलरली आप डिस्क को, हार्ड डिस्क को भी डिवाइड कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं हार्ड डिस्क का अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। लाइक यदि 2 GB के हार्ड डिस्क है तो आप 1 GB का पार्टीशन अलग कर सकते हैं और बाकी का बचा हुआ 1 GB को आप हाफ डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से 3 पार्टीशन आपके हार्ड डिस्क में हो जाएंगे और जब आप डिवाइड करेंगे तो उसको अलग अलग ड्राइव लेटर्स असाइन हो जाएंगे। इनिशियली डिफॉल्ट लेटर जो असाइन होता है सी ड्राइव होता है, इसको हम सी ड्राइव बोलते हैं। अगेन आप आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो डी ड्राइव उसका नाम दे सकते हो, ई ड्राइव दे सकते हो। इस तरीके से आप कोई भी लेटर्स को असाइन कर सकते हो जिससे उस पार्टीशन पे जब आपको फाइल सेव करना है तो इसकी हेल्प से आप सेव कर पाओगे। नाउ हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर में आपके सारे ही डिवाइसेस हो गए, कंपोनेंट्स जितने भी आपके फिक्स्ड हैं कंप्यूटर के अंदर और बाहर, वो सारे के सारे हार्डवेयर्स हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट। GUI मीन्स जो भी आप देख रहे हैं आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है दैट इज विंडोज।
विंडोज और एंड्रॉइड जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो GUI बेस्ड होते हैं, यानी जो भी आप काम करते हैं वो विजुअलाइज फॉर्म में आपको दिख रहा है कि आपको आइकन दिख रहा है कि हाउ मेनी सॉफ्टवेयर आर देयर इन योर सिस्टम, और कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पर है। आप उस पर डबल क्लिक करते हो तो आपके सामने वो ओपन हो जाता है, राइट क्लिक करते हो तो उसमें सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, रीनेम करना है कि कॉपी करना है, जो भी करना है, यानी एवरीथिंग यू कैन विजुअलाइज। जो भी चीज आप कर रहे हो आप देख पा रहे हो कि आपने ये किया, आपने कॉपी किया तो प्रोसेसिंग होते हुए दिखाई देती है कि फाइल इज कॉपीड। बट पहले जब GUI इंटरफेस नहीं था तो हम CUI इंटरफेस यूज करते थे, वहां पर हम जो भी काम करते थे वो सब कुछ कमांड्स के फॉर्म में करते थे, यानी हमें लिखकर बताना पड़ता था कि यू हैव टू कॉपी दिस फाइल टू दिस प्लेस। आपको कमांड देना होता था लिखकर, और आपको पता नहीं चलता था कि वो कॉपी हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ पर अभी आप कॉपी करते हैं GUI में तो आपको परसेंटेज भी दिखता है कि इतना % कॉपी हो गया प्रोग्रेस बार के फॉर्म में, यानी हर चीज आपके लिए इजी हो गई है क्योंकि आप सब देख पा रहे हैं सामने। तो ये सारा जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है GUI वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हो पा रहा है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, आपके कई सारे इनपुट डिवाइसेस भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं, लाइक हो सकता है आपने माउस भी कनेक्ट किया है, कीबोर्ड भी कनेक्ट किया है, स्कैनर भी कनेक्ट किया है, जॉयस्टिक भी कनेक्ट किया है, और हो सकता है सेम टाइम आप मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं या मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं। तो करेक्ट सिग्नल करेक्ट पोजीशन पे जाना, किस तरीके से किस डिवाइस के लिए ये सिग्नल है, किस डिवाइस के लिए इंस्ट्रक्शन है, ये सारा मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, एक साथ आप कई सारी प्रोसेस रन कर सकते हैं, कई सारी एप्लीकेशंस आप रन करते हैं। कई बार आपने MS वर्ड भी खोला होता है, पेन ब्रश भी खोला होता है, ब्राउजर भी खोला होता है, आप ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं। एट अ टाइम आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को खोल के बारी बारी उस पर काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी प्रोसेस मैनेजमेंट किसकी हेल्प से हो पा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। आपको वो रोकता नहीं है कि आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं तो पहले केवल MS वर्ड पे ही कीजिए, इसको बंद करके दूसरी एप्लीकेशन खोलिए। वो आपको एट अ टाइम मल्टीपल एप्लीकेशंस पे रन करना अलाउ कर रहा है। तो ये सारा मैनेजमेंट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। नाउ फाइल मैनेजमेंट, फाइल भी आपकी जो स्टोर हो रही है वो किस पोजीशन पे होगी, कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, किस फोल्डर में उसको स्टोर किया जा रहा है, इसकी भी कहीं ना कहीं अकाउंट मेंटेन किया जाता है। यदि वो डिटेल मेंटेन नहीं करेगा तो जब आप फाइल खोल रहे हैं या नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो हो सकता है वो ओवरलैप हो जाए, ओवरराइट हो जाए। तो यहाँ फाइल को भी वो मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट। जैसे कंप्यूटर डिवाइस में मेमोरी को आपने डिवाइड किया है या मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है, कौन सा मेमोरी स्पेस फ्री है, वो सारा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। क्योंकि उसे मान लीजिए आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो वो सर्च करेगा कि मेमोरी में कौन सा स्पेस अभी अवेलेबल है, उस स्पेस को अलॉट करेगा वो न्यू फाइल को या न्यू एप्लीकेशन को या न्यू सॉफ्टवेयर को, जो भी आप काम कर रहे हैं। तो उसमें जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। स्टोरेज मैनेजमेंट, यानी यहाँ भी आपका स्टोरेज रिसोर्सेज को का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर पाए, किस तरीके से इसकी वर्किंग इम्प्रूव होगी, ये सारा भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है। नाउ दिस इज फिगर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर हम क्या करें, लेयर्स बता रहे हैं कि किस तरह से लेयर हमारे कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के बीच में होती है। सबसे बाहर हमारा यूजर है, यानी हम हैं, जो हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये जो इंटरनल लेयर है हार्डवेयर की, यानी जिसमें CPU, डिस्क, माउस, प्रिंटर एटसेट्रा सारे कुछ हैं, इनके संग हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स की हेल्प से हम इसे इंटरेक्ट कर पाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सेस कौन करता है? यूजर। तो इस तरीके से लेयर से आप समझ सकते हैं कि यूजर किससे क्या ओपन कर रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मान लीजिए उसने स्प्रेडशीट मतलब कि MS एक्सेल ओपन किया, MS एक्सेल में उसे राइट करना है, उसे फाइल को सेव करना है या उसे प्रिंट कमांड के थ्रू प्रिंटर पे भेजना है। तो जब वो इंस्ट्रक्शन देगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर देखेगा कि ये
जो इंस्ट्रक्शन है कहाँ के लिए है, फाइल सेव करना है तो मेमोरी पे जाके उसको सेव करवाना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, यदि वो उसको प्रिंटर के लिए मतलब प्रिंट करने के लिए है तो उसे प्रिंटर तक सेंड करना, ये सारा काम कौन डील कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पर भेज रहा है? वो हार्डवेयर पे, सूटेबल हार्डवेयर के जो भी हमने जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी है उस हिसाब से वो डेटा को वहां पर सेंड करता है। तो आई होप इस फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये मैनेज करता है। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर? हमने एक टाइप पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर दोनों ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड कैटेगरी थी लैंग्वेज ट्रांसलेटर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर। We all knows computer can understand only binary language, that means language of 0 and 1. ऐसी लैंग्वेज जिसमें 0 और 1 के अलावा हम कोई और कैरेक्टर या कोई और नंबर का यूज नहीं करते, यानी हमें जो भी कुछ बोलना है, जो भी कुछ लिखना है, वो सारा 0 and 1 के कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाएगा। तो यदि हमारे पास इस लैंग्वेज में सामने कोई इंस्ट्रक्शन हो जिसमें इस तरीके से लिखा गया 0 1 इस तरह से कुछ फॉर्मेट में है, हम क्या समझ पाएंगे इसको? हमारे लिए समझना, हमें लर्न करना कि ये कोड किस वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ध्यान रखना, मेमोराइज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और हम जो लैंग्वेज समझ पाते हैं, एक जनरल इंग्लिश जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है, क्योंकि कॉमनली यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है जनरल इंग्लिश। तो हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं लाइक पाइथन, C++, जावा, ये सारी किस तरह की लैंग्वेजेस हैं? इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस। इन्हें हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। हम इस लैंग्वेज में कोडिंग करना इजी समझते हैं क्योंकि हमें वो इंग्लिश समझ में आती है, हम हमारे आम भाषा के तौर पे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लाइक C++ इन लैंग्वेजेस में, या पाइथन। बट इन लैंग्वेजेस को जब हम यूज करते हैं, इसमें जब हम कोडिंग लिखते हैं, इसे कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर समझ पाता है केवल बाइनरी लैंग्वेज को। तो यहाँ वी नीड अ ट्रांसलेटर जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को बाइनरी में कन्वर्ट करे, जिससे कि कंप्यूटर समझ पाए कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करनी है। और जब वो काम कर लेगा तो आउटपुट को अगेन हमारी लैंग्वेज, यानी हम जो भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके देगा। तो ये जो काम है वो किसका है? ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर या कह सकते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज कोड, इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड मीन्स मशीन लैंग्वेज में जो कोड होगा उसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ना हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्जाम्पल्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फर्स्ट एग्जाम्पल था असेंबलर। इनिशियली जब बाइनरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की गई थी वो हमारे लिए समझना बहुत डिफिकल्ट थी। उसमें जो एरर्स आती थी उसे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था। तो वहाँ पर एक सॉल्यूशन निकाला गया, एक लैंग्वेज डेवलप की गई, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या किया गया कि कुछ कुछ कोड्स के लिए वर्ड्स बना दिए गए। लाइक हमें ऐड करना हो तो हम ADD से कर सकते हैं। हमें ऐड लिखने के लिए 10101 के फॉर्म में कॉम्बिनेशन नहीं लिखना है। तो इन कोड्स को कहा गया निमोनिक कोड्स। बट अगेन यहाँ भी वही प्रॉब्लम थी कि इन कोड्स को डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता था, तो इसे भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती थी। तो जो कोड असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है उसे कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की जरूरत पड़ती है। तो असेंबलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। Now second category of language translator is compiler. कंपाइलर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि यदि आपका प्रोग्राम मान लीजिए 50 लाइन्स ऑफ कोड कंटेन करता है, 50 लाइन्स का एक प्रोग्राम है इस तरीके से, तो ये कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करेगा और जहां जहां भी एरर्स है वो सारी एरर्स को विथ लाइन नंबर एक साथ शो कर देगा।
इन केस ऑफ कंपाइलर। मान लीजिए लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 25 में एरर्स है, तो वो विथ एरर लाइन नंबर डिस्प्ले कर देगा कि ये लाइन नंबर में ये एरर्स है। तो एक साथ सारा कुछ कंपाइल होके एक साथ एरर्स शो हो रही है इन केस ऑफ कंपाइलर। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर इट कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, यानी पहली लाइन वो देखेगा कंपाइल करके, इफ इट इज करेक्ट देन इट विल ट्रांसलेट सेकेंड लाइन। यदि पहली लाइन में उसे एरर मिल गई तो वहीं पर रुक जाएगा, वहीं पे स्टॉप कर देगा, वहां पर वो एरर शो करेगा। जब तक हम फर्स्ट लाइन की एरर को रिमूव नहीं करते वो सेकेंड लाइन पर मूव नहीं करता। तो डिफरेंस यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या है? मेन डिफरेंस कि ये एट अ टाइम होल कोड को कंपाइल करेगा और ये लाइन बाय लाइन करता है। हम डिटेल में डिफरेंस को यहाँ डिस्कस करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। एज इनपुट कंपाइलर में क्या जाता है? एन एंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम, और इंटरप्रेटर में क्या जाता है? सिंगल लाइन ऑफ कोड और सिंगल इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम। ये अभी हमने डिस्कस किया था। आउटपुट के फॉर्म में क्या जनरेट करेगा कंपाइलर? इट जनरेट्स इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। इंटरमीडिएट इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले जब कोड जनरेट होगा उसको हम जब एग्जीक्यूट कराएंगे तब वो फाइनल रिजल्ट जनरेट करेगा। और यहाँ पर इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड। ये कोई भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट नहीं करेगा, डायरेक्टली रन करता जाएगा लाइन बाय लाइन। वर्किंग मैकेनिज्म इसका कंपाइलर का कैसा है? द कंपाइलेशन इज डन बिफोर एग्जीक्यूशन। यहाँ पर दो स्टेप है कि पहले वो कंपाइल कर रहा है और उसके बाद एग्जीक्यूट कर रहा है। कंपाइल का मतलब है कि वो उसको ट्रांसलेट करेगा इक्विवेलेंट कोड में, मशीन कोड में, जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ पाए। करेक्ट कोड जब जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद उसको वो एग्जीक्यूट करता है या उसको रन करता है। एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि जो काम उसको करने के लिए कहा गया वो उसको एक्शन में लाता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यू हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मान लो आपको कहा गया कि ग्वालियर टू जयपुर आपको जाना है, तो आपने इंस्ट्रक्शन दी है, लेकिन जब पर्सन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, वो ये जाना शुरू करेगा कि वो मूव करना शुरू करेगा ग्वालियर टू जयपुर, तो ये आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूशन हो रहा है। ठीक है। कंपाइलेशन मतलब उसने इस स्टेटमेंट को, इस इंस्ट्रक्शन को समझ लिया कि उसे करना क्या है, तो वो कंपाइल होके उसको कोड मिल गया। इन केस ऑफ इंटरप्रेटर कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक लाइन वो कंपाइल और एग्जीक्यूट एक साथ ही करेगा। कंपाइलर की जो स्पीड है कंपैरेटिवली फास्टर होती है इंटरप्रेटर की तुलना में। मेमोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंपाइलर में क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट कर रहा है, और यहाँ पर इंटरप्रेटर में ऐसा कुछ नहीं है। एरर्स डिस्प्ले, अभी मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी एरर्स एक साथ ही एक ही टाइम पर डिस्प्ले हो जाती है, जबकि इन केस ऑफ इंटरप्रेटर हर लाइन के बाद वो एरर को डिस्प्ले करता है। एरर डिटेक्शन डिफिकल्ट है क्योंकि यदि मान लीजिए आपके प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ लाइंस हैं, तो 100 लाइन से एरर्स को फाइंड आउट करना मतलब आप एक एक करके पूरी 100 लाइंस को रीड आउट करोगे कि एरर कहाँ है, उसके बाद उसको देख पाते हो। बट इन केस ऑफ इंटरप्रेटर एक एक लाइन वो आपके सामने शो कर रहा है, वहां पर उसी लाइन नंबर में एरर है तो आपको मालूम है इस लाइन में मुझे जाके ये लाइन की एरर को रिमूव करना है, तो ईजियर है एज कंपेयर टू कंपाइलर। कौन कौन सी लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करती है? सी, C++, C#, स्केला। और इंटरप्रेटर यूज करने वाली लैंग्वेजेस हैं PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी। नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। What do you mean by utility software? Utility software is system software designed to help analyze, configure, optimize और maintain a computer. कंप्यूटर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, आप उसमें काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट उसमें कई सारी एडिशनल फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि आपका कंप्यूटर मेंटेन रहे। लाइक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए आपके पास बैकअप फैसिलिटी होती है, डीफ्रेगमेंटर होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं लाइक एंटीवायरस, बैकअप सॉफ्टवेयर, क्लिपबोर्ड फैसिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी, स्क्रीन सेवर, सिस्टम मॉनिटर, डिस्क चेकर्स, डीफ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, स्कैन डिस्क एटसेट्रा। ये सारे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होते हैं और इनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम को मेंटेन कर पाते हैं, राइट। नाउ दिस इज द असाइनमेंट फॉर यू।
आपने यदि आज का सेशन अच्छे से देखा है, समझा है, तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी आपको डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।